سارا مشکل میں آپ ہنسی. کسی کا بھی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا. اس نے مدد طلب نظروں سے حسنہ کو دیکھا. مجھے لائبریری جانا ہے, ایگزامز ہونے والے ہیں نا. حسنہ نے سب کو مخاطب کیا. اکیلی مت جانا حسنہ, میں ساتھ چلوں گی. سارا نے لقمہ دیا. زرینہ واپس کمرے میں آئی تھی. 1 گھنٹہ پورا ہوا, اس نے زور سے اعلان کیا. سب نے حیرت سے زرینہ کو دیکھا. وہ کون سے گھنٹے کی بات کر رہی تھی؟ پتہ نہیں. حسنہ اور سارا جو طریقے سے بات کرنے والے تھے گڑبڑا گئے. جی بھابھی آپ چلے, میں آتی ہوں, سارا نے منت بھرے لہجے میں کہا. زرینہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. کیا ہوا سارا, کیسا گھنٹہ پورا ہو گیا؟ احسن نے سارا کو حیرت سے دیکھا. سارا کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا. وہ دراصل ہر 1 گھنٹے کے بعد ماما کو میڈیسن دینی ہوتی ہے نا, وہ بھابھی وہی یاد دلاتی ہیں. بہت پیار کرتی ہے نا ماما سے. سارا نے مسکرانے کی بھرپور کوشش کی. سارا کی بات پر حسنہ کا کہا لبوں پہ ہی دم توڑ گیا. سارا نے اسے بری طرح گھورا تھا. اچھا چلو ہم نکلتے ہیں جلد ہی, پھر آئیں گے. بہت اچھا لگا تمہاری ماما سے مل کے. سارا کو گہری نظروں سے دیکھتا احسن اٹھ کھڑا ہوا. اس کے پیچھے ہی سبھی اٹھ گئے. سارا کی جان میں جان آئی. آج عزت بچ گئی تھی, ورنہ زرینہ بھابھی تو وہیں ذلیل کر دیتی. دروازے کی آواز آئی تو عطیہ نے کپڑا سائیڈ میں پھینک کے اٹھ کے دروازہ کھولا. سامنے ہی دودھ والا ایاز کھڑا تھا. بولو. عطیہ نے حیرت سے اس کے پیچھے کھڑی 2 عورتوں کو دیکھا. جی وہ میں ایاز کو سمجھ نہیں آیا کیسے تعارف کروائے. ہاں دودھ والے ہو نا, جانتی ہوں میں. یہاں کیوں آئے ہو؟ عطیہ کو ابھی بھی اس کا آنا سمجھ میں نہیں آیا تھا. رشتہ لے کے آئے ہیں بی بی, اندر بلانے کا رواج نہیں ہے کیا تمہارے یہاں؟ اس کے پیچھے کھڑی ایک عورت نے زہر بھرے لہجے میں کہا. رشتہ؟ عطیہ کو لگا اس نے غلط سنا ہے. ہاں آمنہ کا رشتہ, ایاز نے دھیمی آواز میں کہا. عطیہ کی آنکھیں پھٹ گئی. پل بھر لگے اسے سمجھنے میں کہ ماجرا کیا ہے. آمنہ کا دن میں 5 بار دودھ لینے جانا اب سمجھ میں آیا اسے. آئے نا جی آئے, اوپر رہتے ہیں وہ لوگ, چلے جائیں آپ. عطیہ نے انہیں سیڑھیوں کا راستہ دکھایا. ان کے اوپر جاتے ہی وہ اماں کے پاس بھاگی. بس پھر کیا تھا, تھوڑی دیر میں وہ دونوں گیلری میں پہنچ گئی. آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں. ابھی تعارف چل رہا تھا. آنے والوں نے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا تھا. عطیہ کے کان پوری طرح اوپر لگے ہوئے تھے. آج تو فری میں شو سننے کو ملنا تھا. شہلا کی یاد میں فراز کا حال مجنوں جیسا تھا. کتنی بے عزتی کی تھی شہلا نے, کیسا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ. دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہوا تھا. وہ کمرے میں گانے لگانے بیٹھا تھا. شیشہ ہو یا دل ہو, آخر ٹوٹ جاتا ہے. فراز کو شہلا کی شکل 4 سو دکھائی دے رہی تھی. وہیں شمس بیگم کو مٹھائی کے پیسے ضائع ہو جانے کا دکھ تھا. فضول میں شمع کو مٹھائی دے آئی تھی, مگر جو بھی تھا حسنہ نے ہمیشہ بہت عزت دی تھی انہیں. فراز کے لیے عطیہ اور حسنہ میں سے ہی کسی کا انتخاب کرنا ٹھیک لگا انہیں. فراز اب اس شہلا کو بھول جاؤ بیٹا, اور یہ بتاؤ عطیہ یا حسنہ, ان میں سے کسے بہو بنا کے لاؤں؟ وہ بیٹے کے پاس ہی بیٹھ گئی. اماں کیوں دل جلاتی ہو میرا؟ فراز تپ گیا. بیٹا پورے 32 کا ہو رہا ہے, بتا کون لڑکی دے گا تجھے؟ آج کل تو لڑکی والوں کی ڈیمانڈز ہی بہت زیادہ ہے. شمس بیگم کو ایک ہی ٹھوکر کھا کے عقل آ گئی تھی. فراز نے ناراض نظروں سے ماں کو دیکھا. بیٹا سچ کہوں تو عطیہ اور حسنہ دونوں ہی اچھی ہیں. اماں حسنہ کا موٹاپا دیکھا ہے, نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ چلنے کا سلیقہ. فراز کو حسنہ کا سراپا یاد آیا. اور عطیہ ہر وقت بس کپڑوں کی سلائی میں چپکی رہتی ہے, اور ٹو لینے کی تو بیماری ہے اسے. فراز نے بڑا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا. سوچ لو فراز, ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے. اب تو تمہارے چہرے پہ گڈھے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ. انہوں نے بیٹے کو آئینہ دکھایا. فراز سوچوں میں ڈوب گیا. عطیہ حسنہ عطیہ, دل و دماغ جنگ لڑ رہے تھے. اسے دونوں ہی پسند نہیں تھی. رشتہ لائے ہیں ہم آمنہ کے لیے, ایاز کا. ایاز کی بہن نے چپتے ہی لہجے میں کہا. آمنہ جہاں شرم سے لال ہوئی, اماں وہیں غصے سے لال ہوئی. کیا کہا آپ نے؟ اس دودھ والے کا رشتہ میری آمنہ کے لیے. ان کا بس نہیں چلا ایاز کا منہ نوچ لے. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں آپ کی بیٹی کو بیانے کا. ایاز کی بہن تو ویسی ناخوش تھی. یہ تو آپ کی بیٹی نے پھنسا لیا میرے اکلوتے بھائی کو. ہر وقت چھت پہ کھڑی نین مٹکے کرتی ہے, ذرا شرم نہیں. انہوں نے دل کی بھڑاس نکالی. نیچے کھڑی عطیہ اور اس کی اماں کی بتیسی نکل آئی. باجی خدا کے لیے چپ کرو. ایاز نے ہاتھ جوڑے. اٹھو اور نکلو یہاں سے. میری بیٹی پہ الزام لگاتے شرم نہیں آئی؟
आमना मेरी सीधी सादी सी बच्ची है, कभी किसी को नजर उठा के नहीं देखा उसने। अम्मा को अपनी बेटी ही नेक नजर आई। जी ठीक कहा आपने, नजर उठा के नहीं देखा, दीदे फाड़ फाड़ के देखा है उसने। सीधी तो इतनी है कि घर की सीध में ही दुकान वाले को फंसा लिया। अयाज की बहन रिश्ता जोड़ने नहीं, हमेशा के लिए किस्सा मुकाने आई थी। आमना की आंखें बरस पड़ी। वहीं अयाज भी इस सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहा था, मगर बाजी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखा अम्मा, कैसा गुल खिलाया आमना ने, अतिया ने सरगोशी की। ठीक कहा। मोमिना भी फरहान के आगे पीछे फिरती है, नजर रखनी पड़ेगी हमें। उनको फरहान की फिक्र सताई। अतिया को अपना और जीशान का रिश्ता खटाई में पड़ता नजर आया। बाजी चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता। अयाज की शक्ल पे 12 नहीं 24 बज रहे थे। नहीं नहीं अयाज, बोलने दो बाजी को अपनी। आमना से अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं कहती हूँ बेटी को अच्छी तरबियत दी आपने, पैसे वाला लड़का देखा नहीं, राल टपक गई वहीं। बाजी तो किसी सेंटर से ट्रेनिंग लेके आई थी शायद। पैसे वाला, दूध वाला है तुम्हारा भाई। आमना की अम्मा को आग लगी। बाड़े हैं अपने, 200 भैंसे हैं अपनी, पूरे शहर में हमारा काम चलता है। बाजी ने अमीरी का रोब झाड़ा। वहीं आमना की अम्मा चौंकी। बाजी खुदा का वास्ता भी दे चुका मैं तुम्हें, अब तो बस करो। वो जो उन लोगों को धक्के मार के निकालने वाली थी, अब खामोश खड़ी थी। दिमाग ने 1 और 1 11 का हिसाब निकाल लिया था। फराज से कहीं ज्यादा खुश शक्ल और पैसे वाला था अयाज, तो वो घाटे का सौदा क्यों करती, जबकि आमना भी यही चाहती थी। बैठ के बात करो बहन। उनका लहजा ही बदल गया। अयाज और आमना ने हैरत से उन्हें देखा। अयाज की अम्मी ने अपनी बेटी को जबरदस्ती बिठाया। बहन आए तो रिश्ता लेके थे अयाज का, मगर लगता है आपको अयाज का दूध वाला होना पसंद नहीं। अयाज की अम्मी कुछ सुलझी हुई खातून थी। अरे नहीं बहन, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अयाज तो बहुत मेहनती बच्चा है, मुझे तो बहुत पसंद है। आमना पानी तो ला मेहमानों के लिए। अचानक ही उनके लहजे में शहद जैसी मिठास धर आई। आमना दौड़ के पानी ले आई। मोमिना भी खामोशी से कोने में खड़ी थी और गैलरी में नीचे वो दोनों सांस रोके खड़ी थी। आमना ने क्या हाथ मारा है अम्मा, अतिया को जलन सी महसूस हुई। हाँ ठीक कहा तुमने, यह अयाज तो बहुत पैसे वाला है भाई। बेटी की बात पर वो 100% मुत्तफिक थी। एहसन सारा के केबिन में ही चला आया। सारा भी उसी की तरफ मुतवज्जा थी। बहुत नाइस है आपकी फैमिली, वो मुस्कुराया था। मुझे आप जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी सारा। पढ़े लिखे लोग, समझ बूझ रखने वाले और क्लासी। वो सारा की आंखों में आंखें डाले बात करता हुआ उसके करीब आया। सारा को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। वो उसके और करीब हुआ। सारा, शादी करोगी मुझसे? एहसन अहमद ने सारा के दिल के तारों को छुआ। वो इस बात में सर हिला गई। एहसन ने प्यार से उसके बालों को कंधे से पीछे धकेला। थैंक्स सारा। मामा को कब भेजूं? वो डायरेक्ट रिश्ता भेजना चाह रहा था। सारा के तोते उड़ गए। झूठ के पाँव नहीं होते सारा। उसे अम्मा का जुमला याद आया। जरीना भाभी अब तो कोई फेवर नहीं देने वाली थी। मैं आमना के अब्बा से बात करके आपको कल जवाब देती हूँ। वो राजी थी। बहन, मुझे बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, बस आजकल की मेहमान हूँ, इसीलिए फौरी शादी करना चाहते हैं हम लोग। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसी जुमे को सादगी से शादी कर लेते हैं। अयाज की अम्मी ने सीधे सादे लफ्जों में बात मुकम्मल की। अभी बेटे का सेहरा देखने की जल्दी है, फिर पोते पोतियां गोद में खिलाने की जल्दी होगी। ये जो इस तरह कह के शादियां निमटाई जाती हैं, ये लोग कभी नहीं मरते, लिख लो मेरी बात। तुम्हें मौत आ जाएगी, इनकी तब भी कोई ख्वाहिश अधूरी होगी। मोमिना ने सरगोशी की थी। आमना की हंसी छूट गई। अयाज की अम्मा ने आमना को घूरा था। उसने जल्दी से दांत अंदर किए। मोमिना मुंह बंद रख अपना, वो दबी दबी आवाज में बोली। जीशान सीढ़ियां चढ़ रहा था जब अतिया पे नजर पड़ी। उसने मुस्कुरा के अतिया को देखा। रिक्शे की चाबियां हाथ में घुमाता अतिया की तरफ चला आया। क्या बात है, कुछ कहना है? अतिया की खामोश नजरें उस पे जमी हुई थी। सबकी मोहब्बत अमर हो जाएगी, बस मैं सिलाई करती रह जाऊंगी और तुम रिक्शा ही चलाते रहना। अतिया ने जले दिल से कहा। क्या हुआ मेरी रानी, गुस्सा किस बात का है? फिर कुछ गलत सिल गया क्या? आ जाओ रिक्शा में बिठा के घुमा लाऊं। वो मजाक उड़ाते हुए बोला। किस्मत गलत सिल गई तुम्हारे साथ जीशान, तुम कभी शादी नहीं करोगे मुझसे, बस रिक्शे में घुमाते रहोगे। 2 आंसू उसके रुखसार को भिगो गए।
हुआ क्या है, क्यों स्टार प्लस बनी हुई हो? उसके आंसू ज़ीशान के दिल पे नहीं दिमाग पे गिरे थे। वो गुस्से का इतना ही तेज था। अतिया ने अयाज के रिश्ते वाला सारा किस्सा सुना डाला। ज़ीशान गुस्से में भड़कता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अतिया उसे आवाजें देती रह गई। अम्मा, अम्मा! वो बहुत गुस्से में घुसा था। क्या हुआ बेटा? अम्मा ने बेटे के तेवर देखते हुए नरमी से पूछा। अपनी बेटी से पूछो क्या हुआ, अब यहाँ दूध वालों के रिश्ते आएंगे। उसे सारा गुस्सा अयाज के दूध के काम की वजह से आया था। तो तुम कोई वजीर लगे हुए हो ना भाई? आमना तब के बोली। शर्म नहीं आती भाई से जुबान चलाती है? ज़ीशान ने माँ को शिकायती नजरों से देखा। बेटा बात सुन, उसका दूध का काम है तो तू भी तो रिक्शा चलाता है। कल को कोई यही तुझे कह के भी बेटी नहीं देगा। अम्मा ने साफ लफ्जों में उसे आईना दिखाया। अम्मा मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? ज़ीशान हैरान हुआ। कल तक तो तुम फराज के लिए मर रही थी ना? बेटा फराज के पास सरकारी नौकरी के अलावा है ही क्या? अयाज का पूरा कारोबार है दूध का, पसंद भी करता है अपनी आमना को। फराज के तो मिजाज 7 आसमान भी पार कर चुके हैं, उम्र भी ज्यादा है उसकी आमना से। वो मुकम्मल तौर पे राजी थी। अयाज के कारोबार ने उन्हें फराज की सारी खामियां दिखा दी थी जो उन्हें आज तक नजर नहीं आई थी। बस इस जुम्मे को सादगी से शादी। मैंने हाँ कर दी है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे अब्बा भी राजी हैं। ये कह के उन्होंने ज़ीशान का मुंह बंद कर दिया। छोटी मामी का फोन आया था। शम्मा बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जहां हुस्ना और सारा बैठी टीवी पर बिग बॉस देख रही थी। आमना की इस जुम्मे को शादी है। उन्होंने दोनों के सर पे पटाखा फोड़ा। क्या? आमना की शादी? तावीज तो अतिया के लिए गाड़ा था ना? हुस्ना को बात हजम नहीं हुई। तावीज के बिना किसी का रिश्ता नहीं हो सकता क्या? मोटी अकल की। सारा ने हुस्ना के सर पे चपत लगाई। हुस्ना सर सहलाने लगी। पता नहीं किस राह चलते से रिश्ता कर डाला भाभी ने। अब ये तो जाके ही पता चलेगा। शादी भी इतनी जल्दी रखी है, पता नहीं क्यों। शम्मा बेगम को खुलबुली लग गई। इसी असना में उनका फोन बजा। शम्स आपा लिखा देख के फोन उठाया। जी आपा। हाँ आई है शादी की दावत, फोन पे। फुप्पो हैं हम, कोई सलाह मशवरे की जरूरत तक ना समझी भाभी ने, गैरों की तरह फोन पे दावत दे डाली। अब वो दूसरी तरफ की बात सुन रही थी। जी ठीक कहा आपने आपा, मैं भी 250 का लिफाफा रख के आऊंगी। जब गैरों की तरह बुलाया है तो हम क्यों सगे बने? अब जाके पता चलेगा कौन सा हीरा मिल गया भाभी को। आमना का चक्कर पकड़ा गया होगा उस दूध वाले के साथ, इसीलिए जल्दबाजी में किसी से भी रिश्ता कर डाला होगा भाभी ने। शम्मा बेगम ने तुक्का मारा। चले जुम्मे को मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। फोन बंद करके वो वहीं बैठ गई। अम्मा मैं शहला से कपड़े मांग लाऊं शादी में पहनने के लिए? हुस्ना ने डरते हुए पूछा। कमबख्त मारी, मांग के पहनने की आदत नहीं जाएगी तेरी। अलमारी भरी पड़ी है मगर नहीं। अभी खोल अलमारी, 8-12 जोड़े यूं ही कदमों में आके सलामी देंगे। शम्मा बेगम ने उसे अच्छे से सुना डाली। आमना दुल्हन बनी बैठी थी। मोहल्ले के एक पार्लर से उसे तैयार करवाया गया था। उसकी खूबसूरती को 4 दाग लग गए थे। अच्छी भली लड़की को लाल भूतनी बना के भेज दिया। मोमना गुस्से में उसे बार बार मुंह धोने का कह रही थी। बारात आने वाली है मोमना, फजूल के मशवरे मत दे। अम्मा ने उसे झाड़ा। घर के बाहर ही एक छोटा सा टेंट लगा के गली बंद की गई थी। इंतजाम गली में ही किया गया था। अतिया का दिल जला जा रहा था। वो आमना से पूरे 2 माह बड़ी थी, फिर भी पहले शादी उसकी नहीं हो रही थी। शम्मा फुप्पो और शम्स फुप्पो तशरीफ ले आई थी। हुस्ना और सारा भी खूब पेंट करके आई थी। जरीना और मुसद्दिक भी साथ आए थे। जरीना लाल साड़ी बांधे नखुवत से एक कोने की कुर्सी पे बैठ गई। कोई बैंक्वेट नहीं मिला था तुम्हारी मामी को? यहाँ ऊंची नीची जमीन पे कुर्सियां रख दी, बालों को झटका मारती वो सबकी नजरों का मरकज थी। तुम्हारी शादी भी गली से ही की थी तुम्हारे अब्बा ने। मुसद्दिक का दिल जला। जरी ने उसे घूर के देखा। चल हम आमना के पास अंदर चलते हैं। हुस्ना सारा का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। सामने से आते फराज को देख के उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। हुस्ना को देख के फराज रुक गया। आज वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अतिया या हुस्ना, दिल ने लम्हों में फैसला किया था। हुस्ना उसे नजर चुराती अंदर जाने ही लगी थी कि पाँव के नीचे पत्थर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ा गई। फराज ने आगे बढ़ के उसके भारी भरकम वजूद को संभालने की कोशिश की और नतीजतन वो खुद भी लड़खड़ा गया। इर्द गिर्द बैठे लोगों की दबी दबी हंसी की आवाजें सुनाई दी। हुस्ना ने शर्मिंदगी से फराज को देखा। संभल कर हुस्ना,
फराज ने नरमी से कहा। हुस्ना फराज के मुंह से कुछ सख्त अल्फाज सुनने के लिए तैयार थी, मगर फराज के लहजे ने उसे शशदर कर दिया। चलो भी अंदर। सारा ने उसे खींचा। दिल में बजते गिटार सारा की आवाज पे खामोश हो गए। वो दोनों अंदर की तरफ चली गईं। फराज पीछे से हुस्ना को जाते देख रहा था। शहला की निस्बत आज हुस्ना उसे ज्यादा खूबसूरत लगी थी, या शायद ये उस बेइज्जती का कमाल था जो शहला ने की थी। सारा सुन। हुस्ना उसके कान में घुसी। क्या है, सब देख रहे हैं। सारा ने उसे धकेला। तावीज का कमाल देखा? फराज का लहजा ही बदल गया। वो खुशी से सरशार होके बोली। सारा ने उसे गुस्से से देखा था। बहुत खूब भाभी, जरूरत ही ना समझी नंदों को पूछने की। रिश्ता भी हो गया, शादी भी रख दी, अभी भी क्यों बुला लिया हमें? शम्मा बेगम और शम्स बेगम आज भाभी से लड़ने के लिए तैयार थी। बारात आने को है और आप दोनों हैं कि भतीजी की शादी है, बारात का इस्तकबाल करें। फरखंदा और ताहिरा ने मिलकर बात खत्म करने की कोशिश की। यही तो कह रहे हैं हम कि भतीजी की शादी है और हमें मेहमानों की तरह बुलाया गया है। वो दोनों टलने को तैयार ना थी। आमना का मेकअप बहना शुरू हो गया था। जगह जगह से बेस फटने लगी। आंखों पे लगी चमकी अब गालों पे आ ठहरी थी, मगर बारात ना आई। हाय आमना, ये मेकअप को क्या हुआ? ये क्या हाल हो गया? सारा की चीख निकली थी। आमना की शक्ल भी रोने वाली हो गई। सारा जो उसके साथ सेल्फी लेने के इरादे से अंदर आई थी, अब अपनी अकेली की ही सेल्फियां ले रही थी। बारात दरवाजे पे खड़ी है, चलो लड़कियों, चले ना आप दोनों भी। गिले शिकवे फिर कभी सही। ताहिरा बेगम ने सबको बारात के इस्तकबाल के लिए बुलाया। सभी दुल्हा को देखने को बेताब थे, सो जल्दी से बाहर को लपके। फूलों से भरी प्लेटें लिए मोमिना, सारा, अतिया और हुस्ना सबसे आगे खड़ी थी। आज अतिया बहुत बुझी बुझी थी। बार बार शिकवा कुना नजरों से जीशान को देखती और फिर मुंह फेर लेती। क्या हुआ अतिया, क्यों सड़ रही हो? हुस्ना पूछ बैठी। मैं क्यों सड़ने लगी? अतिया खोल उठी। अच्छा ये तो बताओ, दुल्हा कौन है? सारा ने सहरे के अंदर छुपे दुल्हा को झांक झांक के देखने की कोशिश की। अभी देख लेना कौन है, इतनी क्या जल्दी है? अतिया ने मुंह बनाया। बारात अंदर आए तो देखे ना। हुस्ना ने दरवाजे पे अटकी बारात को देखा। कुछ गड़बड़ लग रही है सारा। मामी मामू की शक्ल देखो, लगता है कोई मसला हो गया है। हुस्ना को तशवीश हुई। जाओ जाके पता करके आओ। अतिया ने उसे ही भेजा। हुस्ना फौरन खोज लगाने आगे बढ़ गई। कितना टाइम लगेगा मुसद्दिक? ये बारात अंदर क्यों नहीं आ रही? जरीना बैठे बैठे थक गई। पता नहीं यार, लड़के की बहन ने कोई डिमांड रख दी है, बस वही मसला चल रहा है। मुसद्दिक बेजार होके बैठ गया। उफ, किन लोगों में रिश्ता कर दिया। सुबह का नाश्ता किया था बस, सोचा था अब शादी में ही खा लूंगी, मगर तुम्हारे खानदान में जब तक 10 ड्रामे ना हो जाए ना कोई काम पूरा नहीं होता। कम से कम खाना ही खोल देते। जरीना ने हस्बे आदत ससुराल को बुरा भला कहा। हाँ हाँ बस ठीक है, पता है मुझे, यहाँ शादी रुकी हुई है, तुम्हें खाने की पड़ी है। मुसद्दिक उठ के चला गया। सच बोलने का तो जमाना ही नहीं है। उसने परस में से एक बिस्किट का पैकेट निकाल के खोला। पहले ही कहा था मैंने, पता नहीं किससे रिश्ता जोड़ दिया। अब देखो, दिखा दी ना औकात। शम्स बेगम ने आहिस्ता से शम्मा बेगम के कान में कहा। हाय आपा, मांगा क्या है ये तो बताओ। शम्मा बेगम अभी तक लाइलम थी। लड़के की एक बहन है गुलशन, उम्र में बड़ी है, सरकारी स्कूल में हेड मास्टरनी है, उसकी शादी नहीं हो रही। तो दूसरी शादीशुदा बहन ने शर्त रखी है कि रेहान का निकाह उससे करवाया जाए आज ही, अयाज और आमना के निकाह के साथ। जब भी अयाज और आमना का निकाह मुमकिन है। दबी दबी आवाज में उन्होंने सारा माजरा सुनाया। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं आपा? शम्स बेगम की आंखें खुल गई। रेहान बेचारे का क्या कसूर? देख लो जमाना, कयामत बस आने को है। शम्स बेगम को शहला का रवैया भी याद आ गया। अब क्या होगा आपा? बस खामोश बैठ के तमाशा देखो, हम तो मेहमान हैं वैसे भी। शम्स बेगम और शम्मा बेगम भी एक कोने पे लगी कुर्सियों पे बैठ गई। मोमिना आदत से मजबूर खबर मिलते ही आमना की तरफ दौड़ी। आमना पहले से ही अपने मेकअप से परेशान बैठी थी। ये खबर सुन के तो उसके तोते उड़ गए। अयाज की बहन फसादन है ये तो उसे अंदाजा हो गया था, लेकिन शादी रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेगी ये आमना के वहमो गुमान में भी नहीं था। रेहान कभी नहीं मानेगा। आमना के आंसू उसके चेहरे को मजीद बिगाड़ गए।
रेहान बाहर ही मौजूद है आमना, तसल्ली रखो तुम। मोमिना ने उसे गलत वक्त पर खबर दी थी। आमना के रोने में शिद्दत आ गई। वो कभी नहीं मानेगा मोमो। आमना किसी तौर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर सीधी तरह मेरी अयाज से शादी ना हुई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जाओ जाके बिता दो रेहान को भी और अम्मा को भी और अयाज को भी। आमना ने धमकी दी। मोमना धमकी लिए बाहर की तरफ भागी। आमना की धमकी पे सभी परेशान हो गए। सिर्फ शम्मा बेगम, शम्स बेगम और जरीना इत्मीनान से बैठे तमाशा देख रहे थे। अंदर चल के बात करते हैं आराम से। जावेद साहब ने मामला निपटाने की कोशिश की। आप लोग जाइए अंदर, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक रेहान गुलशन से निकाह के लिए हामी नहीं भरता। अयाज की बाजी ने झट से जवाब दिया। चलो रेहान अंदर। सब रेहान को लिए आमना के पास चले आए। रेहान भाई, आमना रेहान को देखते ही चीखी। आज तो कुछ भी करके रेहान को मनाना था। बताओ रेहान, क्या फैसला है तुम्हारा? अम्मा अब्बा के सवाल पर बेचारे रेहान के पसीने छूट गए। एक तरफ बहन की मोहब्बत और एक तरफ हुस्ना की। अब्बा, ये सब ड्रामा किया है अयाज की बहन ने, अब वो ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती। रेहान ने अपनी जान छुड़वाने के लिए कहा। हाँ, मगर हम उसकी ये शर्त अभी मान लें तो आमना का ब्याह मुमकिन है। पैसे वाले हैं, बेटी को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं ना। गुलशन भी हेडमास्टरनी है, सारी जिंदगी कमा के खिलाएगी। अम्मा ने रेहान को रोशन मुस्तकबिल दिखाया। रेहान शशोपंज में पड़ गया। आमना का मेकअप रो रो के खत्म हो गया था। वो जो थोड़ी बहुत चमकी बाकी थी वो मोमिना ने साफ कर डाली। अब उसकी शक्ल कदरे बेहतर नजर आ रही थी। मैं तो कहती हूँ मामी और रेहान को हाँ कर देनी चाहिए। आमना की शादी टूटी तो वो मर जाएगी। हुस्ना ने दिल गिरफ्तगी से कहा। मनहूस 1000 बार कहा अपनी काली जुबान से ना कहा कर कुछ, मुंह बंद रख अपना। सारा ने उसे डपटा। अतिया भी पास ही बैठी थी। अब उसका मूड कदरे बेहतर था। दिल को इस तमाशे से थोड़ी ठंड पड़ी थी। पता नहीं क्या फैसला करते हैं ये लोग। हम भी अंदर चलें क्या आपा? शम्मा बेगम से बाहर बैठे नहीं जा रहा था। कोई जरूरत नहीं, किसी ने झूठे मुंह पूछा तक नहीं। फुफ्फो हैं हम, किसी खाते में नहीं डाला हमें, अब पछताने दो खुद ही। शम्स बेगम तपी बैठी थी। बहन ही बहन की सगी होती है आपा, कुछ भी कर लो, भाभी बहन की जगह थोड़ी ले सकती है। शम्मा बेगम ने मौके से फायदा उठाया। मैं तो कहती हूँ फराज का रिश्ता भी बहुत अपनों में करना, गैरों का क्या भरोसा। शम्मा बेगम की बात पर शम्स बेगम ने सामने बैठी हुस्ना और अतिया को देखा। हुस्ना खुश मिजाज थी, कामकाज में भी अच्छी थी और सबसे बढ़कर बहन की बेटी थी। अतिया के मुकाबले में उन्हें हुस्ना का पलड़ा भारी लगा। सोच तो मैं भी यही रही हूँ शम्मा, अब देखो फराज क्या कहता है। उन्होंने इशारे किनायों में अपनी रजामंदी सुनाई। शम्मा बेगम का तो दिल खुशी से पसलियां तोड़ के निकलने को था। जहाँ शम्मा बेगम बैठी थी बिल्कुल उसके पीछे ही वो जगह थी जहाँ तावीज दबाया था। वो तशक्कुर भरी नजरों से उस जगह को देखने लगी। क्या देख रही हो शम्मा? शम्स बेगम ने उनकी नजरों को महसूस किया। कुछ नहीं आपा, वो गड़बड़ा गई। अम्मा मैं पंखे से लटक जाऊंगी अम्मा। आमना ने ओवर एक्टिंग की इंतहा की। जा लटक जा, टीन की छत समेत जमीन पे होगी। अम्मा गुस्से से बोली। रेहान चल बस, निकाह ही करना है ना अभी, रुखसती के वक्त सोच लियो जो सोचना है। उठ शाबाश। अम्मा ने रेहान को बाजू से पकड़ के खड़ा किया। अम्मा वो हुस्ना, रेहान ने बमुश्किल हुस्ना का नाम लिया। हुस्ना? क्या हुस्ना? वो पहले ही हमारे गोश्त सब्जी के पैसों पे बहुत ऐश कर चुकी रेहान। अगर उसे बहू बनाकर लाई ना तो हम सबको फाके करवाएगी वो, और अपनी फुफ्फो की आदत का नहीं पता क्या। चल बेटा शाबाश, माँ बाप की इज्जत का मान रख। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले आई। चलो लड़कियों, फूलों की प्लेटें उठा के लाओ। वो सबको हुक्म देती खुद भी टेंट के दरवाजे की तरफ गई। अतिया, हुस्ना और सारा प्लेटें उठा के एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करते मामी के पीछे चल पड़ी। मुसद्दिक एक कागज में लिपटा बर्गर लिए जरी के पास आया था। ये लो। बहुत छुपा के बर्गर जरीना को पकड़ा। अब अम्मा से छुपा कर निगलो इसे, चुबाने की भी जरूरत नहीं, समझी? जरीना ने गुस्से से उसे घूरा। छुपाने की क्या बात है? 11 बज गए, अभी तक बिरयानी की देगे नहीं खुली, हमारा कसूर है क्या? जरीना नाश्ता करके आई थी और उसका अब बुरा हाल हो रहा था। उसने मुंह नीचे किए जल्दी से एक टुकड़ा खाया। अब वो मुस्कुराते मुस्कुराते हल्के हल्के चबाने की कोशिश कर रही थी। शाबाश, बस इसी तरह खत्म करो जल्दी।
मुसद्दिक की जान हलक में अटकी हुई थी। अगर अम्मा को पता चलता तो वो यहीं जलील करके रख देती। मुसद्दिक, कोल्ड ड्रिंक भी ले आते ना, जरीना ने उसे आहिस्ता से कहा। मुसद्दिक का दिल चाहा उसका सर फोड़ दे। बारात अंदर आ गई थी, निकाह शुरू हो चुका था। बारी बारी आमना और रेहान का निकाह पढ़ाया गया। अब दोनों दुल्हनें स्टेज पर अपने अपने दुल्हे के साथ बैठी थी। रेहान की नजरें हुस्ना पे जमी हुई थी, जो फराज के साथ खड़ी होकर सेल्फियां ले रही थी। कैसे भूलूं मैं उसका वो तर्जे मोहब्बत, उसका मुझसे वो मोहब्बत से चना चाट मांगना, मुस्कुरा के देखना वो एक अदा से मेरी तरफ, और पान के खोखे से वो मीठा पान खरीदना, कभी आइसक्रीम, कभी जूस, कभी चॉकलेट, उसकी हर फरमाइश को मेरा पूरा करते जाना। रेहान ने एक सर्द आह भरकर पहली दफा गुलशन की जानिब देखा। रेहान का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे लगा शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसने 10 बार आंखों को मसल डाला, मगर हर बार वही चेहरा